Hello students, today we will be covering the topics prime numbers, composite numbers, twin prime numbers, prime triplets and co-prime numbers. Firstly, we will begin with the prime numbers. So what are prime numbers? Prime numbers are the numbers which have only टू फैक्टर्स, जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं. कौन कौन से होते हैं? एक तो वन होता है उसका फैक्टर एंड सेकंड इज द नंबर इटसेल्फ. जो नंबर है वो खुद ही उसका फैक्टर होता है. सो लेट मी टेक वन एग्जांपल. से लेट अस टेक नंबर 2. 2 के फैक्टर्स हम देखते हैं, दैट इज 1 एंड 2. स्टूडेंट्स, if you don't know about how to factorize a number, you can refer to my previous video. I have given its link in the description box. Right? Now we move further. इसके दो फैक्टर्स हैं 1 and 2. So इसका कोई और फैक्टर नहीं है. मैक्सिमम फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स आर 2. So we can say 2 is a prime number. Similarly, if you see 3 is also having factors 1 and 3, only 2 factors, so 3 is also a prime number. Then 5, 7, 11, then 13, then 17, then 19, then 23 and so on. They are number of prime numbers. All these numbers are having only 2 factors. It is 1 and the number itself. Let me take example 29. It is having factor 1 and 29 only, because it is exactly divisible by only 2 numbers. It is 1 and 29. ये पूरी तरह से डिवाइड सिर्फ 1 और 29 से ही होता है, तो इसलिए इसके दो ही फैक्टर्स हैं और इसलिए 29 इज अ प्राइम नंबर. How many prime numbers are there between 1 to 100? 1 to 100 में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? There are 25 prime numbers between 1 to 100. कौन कौन से होते हैं? I'll tell you. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, then 29, then 31. Next is 37. Then 41 will be there, then 43, 44, 45, 46, 47 is there, then 48, 49, then 50, 51, 52, then 53 comes. 53 is also having only 2 factors. It is divisible by only 1 or 53. Then 54, 55, 56, 57, 58, then 59 is there. 60, 61 is there, 62, 63, 64, 65, 66, then 67 is a prime number. 68, 69, 70, 71 is another prime number. 72, then 73 is another prime number. 74, 75, 76, 78, 79 is prime number. 80, 81, 82 and 83 is another prime number. 84, 85, 86, 87, 88, 89 is a prime number. Then 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 and 97 is the last prime number between 1 to 100. How many prime numbers are there? These are 25. You can check. All these numbers are divisible by only 2 factors, 2 numbers. It is 1 and the number itself. You pick up any number, say I talk about 67. 67 किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता है except 1 and 67, right? So it is a prime number. Now see, Eratosthenes, he was a mathematician. He gave us a principle to find prime numbers between from 1 to 100 or 1 to 200, any number of prime numbers. What is that principle? I'll tell you. Let me explain the prime numbers between 1 to 30. Let us see how many prime numbers are there.
First I'll write all the numbers between 1 to 30, that is, and last is 30. Now I've written all the numbers 1 to 30. Then starting with the first number 1, what you feel? What is it? Is it a prime number or is it something else? No, it's not a prime number. Why it's not a prime number? Because it is having single factor, that is 1 only. So it's not a prime number. Then next, we know 2 is a prime number. 2 is a prime number. Why it's a prime number? Because it's having only 2 factors, 1 and the number itself, that is 2. एक और 2 इसके prime factors हैं, so it's a prime number. Now when we know 2 is a prime number, इसके जो multiples हैं, multiples जितने भी multiples हैं उनको हम क्रॉस कर देते हैं. Like पहला मल्टीपल क्या है? 4. 2 का 4. Then next multiple is 2 3 is 6. Then 2 4 is 8 is multiple. Then 2 5 is 10 is another multiple of 2. 2 6 is 12 is another multiple. 2 7 is 14. 2 8 is 16. 2 9 is 18. 2 10 is 20. 2 11 is 22. 2 12 is 24. 2 13 is 26. 2 14 is 28 and last 2 15 is 30. These are the multiples of 2. मैंने जितने भी multiples थे 2 के सबको क्रॉस कर दिया और 2 को सर्कल कर दिया. Now moving to the next number. Next number मेरा 3 है. 3 भी मुझे पता है प्राइम नंबर है because it is also having only 2 factors 1 and 3. अब 3 को मैं क्या करूँगा? एनसर्कल करूँगा और इसके जितने भी मल्टीपल्स हैं उनको क्या करूँगा? क्रॉस करूँगा. 3 के मल्टीपल्स कौन कौन से हैं? पहला मल्टीपल क्या होगा? 6. 3 2 is 6. यस, 6 ऑलरेडी क्रॉस किया हुआ है. नेक्स्ट मल्टीपल क्या है? 3 3 is 9. इसको मैं क्रॉस करूँगा. नेक्स्ट मल्टीपल क्या होएगा? 3 4 is 12. ऑलरेडी इट इज़ क्रॉस्ड. तो उसके बाद 3 5 is 15. इसको क्रॉस करूँगा. 3 6 is 18. ये पहले से क्रॉस है. 3 7 is 21. इसको क्रॉस करूँगा. 3 8 is 24. ये ऑलरेडी क्रॉस्ड है. 3 9 is 27. इसको क्रॉस करूँगा. एंड 3 10 is 30. ये पहले से क्रॉस है. Now moving to the next number. 4 नहीं है. 5. 5 we know it's a prime number. Why it's a prime number? Because it is having only 2 factors 1 and 5. Similarly, repeating the same procedure, 5 के जितने भी मल्टीपल्स हैं मैं उनको क्रॉस करूँगा. पहला मल्टीपल आएगा 5 2 is 10. वो ऑलरेडी क्रॉस हुआ है. Then 5 3 is 15 भी क्रॉस है. 5 4 is 20 भी क्रॉस है. 5 5 is 25 क्रॉस नहीं है, मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ. Then 5 6 is 30. वो भी क्रॉस्ड है. नेक्स्ट नंबर आता है 6 क्रॉस्ड है. 7 इज देयर. 7 हमारा प्राइम नंबर है. इट्स अ प्राइम नंबर. सो 7 के मल्टीपल्स कौन कौन से हैं? 7 1 is 7. 7 2 is 14. 14 ऑलरेडी क्रॉस है. 7 3 is 21. ये भी क्रॉस है. 7 4 is 28. ये भी क्रॉस है. ठीक है. नेक्स्ट 8 क्रॉस है. 9 10 11. 11 इज योर प्राइम नंबर. 11 के मल्टीपल्स कौन कौन से होंगे? 11 2 is 22. 22 कहाँ पे है? दिस इज 22. ऑलरेडी क्रॉस्ड है. ठीक है. 11 3 is 33. दैट इज बियॉन्ड द रेंज. हमने 1 to 30 देख रहे हैं. तो नेक्स्ट देखते हैं. 12 क्रॉस्ड है. 13 इज अनदर प्राइम नंबर. 13 के हमने मल्टीपल्स देखने हैं. 13 1 is 13. 13 2 is 26. 26 कहाँ पे है? ये है. ऑलरेडी क्रॉस हुआ है तो वी लीव इट एज इट इज. देन नेक्स्ट नंबर 14 15 16 17. 17 को क्रॉस करेंगे एंड वील क्रॉस द मल्टीपल्स ऑफ 17. 17 का मल्टीपल 17 1 is 17. 72 is 34. इट इज़ बियॉन्ड 30. 30 के आगे है तो इसको छोड़ देंगे हम ऐसे ही. देन 18 क्रॉस हुआ है. 19 is a next prime number. 19 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 19 1 is 19. 19 2 is 38. 38 30 से आगे है तो उसको भी छोड़ देंगे क्योंकि हम नंबर्स देख रहे हैं प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 30 ओनली. ठीक है.
Then next 20, 21, 22 already crossed, and 23 is the next prime number we have found in the list. So 23 के अगर हम क्रॉस करेंगे, that is 22, 3 2 का मल्टीपल, फर्स्ट मल्टीपल आता है 23 के बाद 46, तो 46 30 से आ गया, तो उसको रहने देते हैं हम. नेक्स्ट इसमें कौन सा बचा है? 29. 29 इज देयर another prime number between 1 to 30. Now we'll check कि सभी सर्कल हो गए हैं कि नहीं. यस, सभी क्रॉस हो गए हैं. यस. सो जो सर्कल्ड हैं दे आर योर प्राइम नंबर्स. जितने भी एनसर्कल हुए हैं, सर्कल्ड नंबर्स जो हुए हैं वो आपके प्राइम नंबर्स बन गए, राइट. एंड जो क्रॉस हुए हैं वो क्या है? यू टेल मी. जो नंबर्स हमारे क्रॉस हुए हैं, जो नेचुरल नंबर्स नहीं, प्राइम नंबर्स नहीं है, उन नंबर्स को क्या बोलते हैं? दे आर नोन एज composite numbers. Composite numbers are the natural numbers which are having more than 2 factors. इसका क्या मतलब हुआ? लाइक मैं 24 की एग्जांपल लेता हूँ. अगर 24 की एग्जांपल लें, 24 के फैक्टर्स फाइंड करें तो 1 and 24 होएगा, ठीक है. एंड 2 and 12 इज देयर, राइट. देन 3 and 8 इज देयर, 4 and 6 is there. 4 6 are 24. These are the factors of 24. They are more than 2. कितने फैक्टर? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 factors are there. So it's a composite number. It's not a prime number. ऐसे ही 25 को देखेंगे. 25 के फैक्टर्स क्या होंगे? 25 के फैक्टर्स देखते हैं हम. 1 25 then 5. 1 5 25. 3 factors are there. So it's not a prime number. It's a composite number. मेरे ख्याल you have understood. प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिनके ओनली 2 फैक्टर्स आर देयर. और वो नेचुरल नंबर्स जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं वो क्या होते हैं? कॉम्पोजिट नंबर्स. नाउ आई टेल यू वन मोर मेथड टू फाइंड द प्राइम नंबर्स. इफ यू आर गिवन सम रेंज इज देयर. Supposing you need to find, you are given a number that is between 1 to 25. इसके बीच में कोई नंबर हमें दे दिया है और we have to check either it is a prime number. से 19 मेरा एक नंबर है, 19 lies in the range 1 to 25. 1 से 25 के बीच में आ रहा है, तो I have to check it is a prime or not. इसको हम देखेंगे ये प्राइम नंबर है कि नहीं है. तो कैसे देखेंगे? हमें इसकी अपर रेंज देखनी है. दैट इज 1 to 25 है ना. 1 to 25 के बीच में आ रहा है. व्हाट इज 25? 25 को अगर लिखेंगे तो हम 5 5 जा 25 लिख सकते हैं, राइट. 5 5 जा 25 लिख रहे हैं. हमें इसमें से 1 5 उठाना है. एक 5 उठाया. एंड नाउ आई हैव टू चेक ऑल प्राइम नंबर्स. ऑल प्राइम नंबर्स अप बिटवीन 1 to 5. 1 to 5 के बीच में कौन कौन से प्राइम नंबर्स आते हैं? 2 and 3. 2 और 3 आएंगे 1 to 5 के बीच में. सो व्हाट आई विल डू, आई विल डिवाइड, आई विल चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ दिस नंबर 19 with 2 then by 3. If it is divisible by 2 or if it is divisible by 3 then it is not a prime number. अगर ये डिवाइड हो जाता है 2 या 3 से तो ये प्राइम नंबर नहीं है, अदरवाइज इट इज़ अ प्राइम नंबर. सो 19 को अगर हम 2 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होएगा. वाई? बिकॉज इट्स अ ऑड नंबर. ऑड नंबर, ऑड नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, विच आर नॉट डिविजिबल बाय एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, राइट. जैसे लाइक ऑड नंबर्स की एग्जांपल अगर देखेंगे तो 1 3 5 7 9 11 13 15 एंड सो ऑन. ये ऑड नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते. सेकंड होते हैं इवन नंबर्स. इवन नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2. 2 4 6 8 all multiples of 2 are even numbers, right. Now
19 is a odd number, it is not divisible by 2. Now I'll check it if it is divisible by 3 or not. 3 से डिवाइड हो रहा है? नो. डिविजिबिलिटी अगर रूल देखें 9 + 1 10. 10 is not divisible by 3. So 19 is also not divisible by 3. So we can say 19 is a prime number. मैं कोई और एग्जांपल भी आपको, let me take another example. Let me take 16, number 16. That is lying within the range 1 to 25 के बीच में आ रहा है. तो मैं क्या करूँगा, इसके जो 5 × 5 is 25, मैंने एक रेंज बनाई है. 1 to 5 के बीच में जितने प्राइम नंबर्स आते हैं उनसे मैं इसको डिवाइड करके देखूंगा. कौन से नंबर आते हैं? 2 and 3. पहले 2 से डिवाइड करके देखूंगा. 16 इज अ इवन नंबर और ऑड नंबर? यस, इट्स अ इवन नंबर. तो इवन नंबर है, इट इज डेफिनेटली डिविजिबल बाय 2. 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आता है? 8 आता है. सो इट इज डिविजिबल बाय 2. सो इट इज नॉट अ, we'll stop here and we'll write it is not a prime number. So not a prime number, it is a composite number, right? Similarly you can check other numbers. 23 को 2 और 3 से डिवाइड करके देखो. it is a odd number. 2 से ये डिवाइड नहीं होएगा. 23 को 3 से डिवाइड करके देखो. 3 + 2 5 is not divisible by 3. तो ये 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा. सो 23 is a prime number, right? Now what you do if the number is lying between 100 and 200, तब क्या करोगे आप? Then again you following the same principle. 200 को पकड़ो. 200 के नियरेस्ट क्या होता है? कोई स्क्वायर बना के देखो. 14 are 196. This is lesser than 200. 15 are 225. This is covering 200. So I'll take this range 15 multiplied by 15. तो इसकी वजह से मेरे को I'll take 15 only and I'll check all the prime numbers between 1 to 15. 1 to 15 के बीच में प्राइम नंबर्स कौन कौन से आते हैं? 2, 3, 5, then 7, then 11, then 13. These are the prime numbers between 1 to 15, right? So what I'll do, I'll take one example first. Let me take one example. 103. 103, I've taken one example. You tell me, is it divisible by 2? No. Why? Because it is an odd number. Is it divisible by 3? No. Why? Because 3 plus 1 is 4. 4 is not divisible by 3. Is it divisible by 5? No. It is also not divisible by 5 because 5 से वही नंबर डिवाइड होते हैं जिनके वंस प्लेस पे इधर 0 होता है या 5 होता है. तो 5 से भी डिवाइड नहीं होएगा. 7 से डिवाइड होएगा? नो. 7 से भी आप डिवाइड करके देख सकते हैं. इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 7. मैं आपको करके दिखाता हूँ. 7 से डिवाइड करके दिखाता हूँ. 7 1s are 7, 3, then 3, 7 5s are 35, then I'll take 7 4s are 28, 5 is the remainder. It is not exactly divisible by 7. So इसको भी हम नो रखेंगे. Then is it divisible by 11? No, it is not divisible by 11. I'll check it. मैं आपको करके दिखाता हूँ. 11 7s are 77, 11 9s are 99, right? तो 4 is the remainder. Is it divisible by 13? No. आप इसको करके देखिए. It is not divisible. So I checked. 103 is not divisible by 2, 3, 5, 7, 11, 13. So conclusion is that 103 is a prime number, right? Similarly, you tell me, we take another example, a number which is lying between 100 and 200. 108. You take 108.
You tell me 108 is divisible by 2 or not? Yes, it is divisible by 2 because it is an even number, right? If it is it is divisible by 2, we can say it is not a prime number, right? It is a composite number, right? I think you have followed the principle. Similarly 107 को अगर आप चेक करोगे, 107 is also lying between 100 and 200. तो हमने इसके 2, 3, 5, 7, 11 and 13 से डिवाइड करके देखेंगे. अगर तो ये डिवाइड हो जाता है तो ये कॉम्पोजिट नंबर है, अदरवाइज इट इज़ अ प्राइम नंबर. मैंने इसको चेक करा है, आप भी इसको चेक करके देखें. तो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय इधर 2, 3, 5, 7, 11, 13 किसी से भी ये डिवाइड नहीं होता, तो इट इज़ अ प्राइम नंबर. नाउ वी विल चेक इफ द नंबर इज लाइंग बिटवीन 100 to 400. अगर कोई नंबर 100 और 400 के बीच में है तो हाउ टू चेक वेदर इट इज़ अ प्राइम नंबर और नॉट अ प्राइम नंबर. तो क्या करेंगे, 400 को पकड़ेंगे. 400 क्या होता है, 20 मल्टीप्लाई बाय 20. सो विल टेक दिस सिंगल 20. तो 1 से लेके 20 तक जितने भी प्राइम नंबर्स हैं विल राइट डाउन दोज प्राइम नंबर्स. कौन कौन से हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 and 19. These are the prime numbers between 1 to 20. तो हम उस नंबर को इन सभी नंबर से डिवाइड करके देखेंगे. इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय एनी ऑफ दीज नंबर्स देन इट इज नॉट अ प्राइम नंबर, अदरवाइज इट इज अ प्राइम नंबर. सो लेट मी टेक वन एग्जांपल लेते हैं. 273. 273 is lying between 100 and 400. Is it divisible by 2? फर्स्ट नंबर 2 से हम 2 से डिवाइड करके देखते हैं. नो, वाई इट्स नॉट डिविजिबल, बिकॉज इट्स एन ऑड नंबर. नेक्स्ट 3 से हम डिवाइड करके देखते हैं. इज इट डिविजिबल बाय 3? 3 से प्लस 7, 10 प्लस 2, 12. 12 इज डिविजिबल बाय 3. येस, इट इज डिविजिबल बाय 3. सो इट इज नॉट अ प्राइम नंबर. बस यहीं पे हमारी कंक्लूजन आ गई. इट्स नॉट अ प्राइम नंबर, इट्स अ कॉम्पोजिट नंबर, राइट. नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं हम. 397. 397 को हम डिवाइड करके देखते हैं 2 से. इज इट डिविजिबल? नो. वाई? इट्स एन ऑड नंबर. 3 से डिवाइड करके देखते हैं. 9 प्लस 7, 16 प्लस 3, 19. इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3 ऑल्सो. 5 से डिवाइड करेंगे तो भी डिवाइड नहीं होगा, बिकॉज 5 से वही नंबर्स डिवाइड होते हैं जिनके वंस प्लेस पे 0 या 5 होता है. 7 से डिवाइड करके देखिए आप, 7 से भी ये डिवाइड नहीं होता है. 11 से भी डिवाइड नहीं होता है. यू कैन चेक इट ऑल्सो. मैं कर देता हूँ. 397 डिवाइड बाय 11, 3 is 33, 6, 7, 11, 6 66, 1 is remainder. So it is not divisible by 11. Similarly, it is not divisible by 13, 17 as well as 19. So it is a prime number. आप इसको डिवाइड करके चेक कीजिए खुद, right? Similarly, you can take an example of 305, 305. Is it a prime number? इसको देखते ही आप बताइए, इनमें से किसी नंबर से डिवाइड होता है? यस, कहीं और नहीं जाना. इट इज़ डिविजिबल बाय 5 बिकॉज इसके एंड में 5 है. तो इट इज़ डिविजिबल बाय 5. सो इट इज़ अ नॉट अ prime number, it is a composite number, right? Then similarly 277 is also another prime number. आप इसको चेक करके देखिए कि ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा. ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता, बट आप चेक करके देखिए. इट इज़ अ प्राइम नंबर दैट इज इन बिटवीन 100 to 400. Now I'll give you few numbers. You have to check whether they are prime or not for your homework. First number is 29. You check it whether it is prime or not. Then 323 is there. Then 271 is there. Then 251. इसको आप चेक करिए प्राइम नंबर है कि नहीं है. Then if you have got any doubt about it, please
give your comments in the description box. I'll explain these numbers, right? Now coming to the next type of numbers is twin prime numbers. Twin primes क्या होते हैं? Twin primes are those consecutive prime numbers differing by 2, means having difference of 2. इसका क्या मतलब हुआ? कोई भी दो प्राइम नंबर्स जिनके बीच में 2 का डिफरेंस हो, दे आर नोन एज ट्विन प्राइम नंबर्स. ये पेयर बन जाता है. लाइक अगर हम देखें तो पहला अगर नंबर था हमारे 2 और 3, 5. 2 और 3 are twin prime numbers? No, because 3 minus 2 is 1. So this is not a twin prime pair. अगर 3 and 5 को अगर देखें हम 3 and 5 is a twin prime pair, right? Because इसमें डिफरेंस क्या है? 5 minus 3 is 2. दोनों प्राइम नंबर्स हैं और दोनों में डिफरेंस कितना है? 2 का डिफरेंस है. सो दे आर ट्विन प्राइम्स. सेकेंड पेयर अगर बात करें तो नेक्स्ट 5, 7 इज ऑल्सो अ ट्विन प्राइम. देन आप चेक कर सकते हैं 1 to 100 में मैंने आपको प्राइम नंबर्स दिखाए हुए हैं. आप इनमें से चेक कर सकते हो. ये हमने डिस्कस किए हैं. लाइक 2 और 3 में तो वी हैव चेक्ड दे आर हैविंग डिफरेंस ऑफ 1. सो ये नहीं है. 3, 5 इज अ ट्विन प्राइम नंबर. Then 5, 7 is also another twin prime. 7, 11 is a twin prime? No, because इसमें डिफरेंस कितना है? 4 का डिफरेंस है. नेक्स्ट ट्विन प्राइम नंबर 11, 13 is a twin prime number, right? ये भी ट्विन प्राइम नंबर है बिकॉज 2 का डिफरेंस है. 13, 17, no, it's not a twin prime number, but 17, 19 is a twin prime number. I write down the twin prime numbers side by side. 11, 13 is a prime number. Then 17, 19 is another twin prime number. Then 23 and 29, no, they are not twin prime. Neither 19 or 23 भी नहीं है. 29 or 31 is a twin prime number. Yes, because it is having difference of 2. 29 and 31, another twin pair is there. Then अगला नंबर है 31 and 37. They are not twin primes. क्यों? क्योंकि इसमें 6 का डिफरेंस है. Then we check 37 and 41. No, they are not twin primes. इसमें 4 का डिफरेंस है. फिर अगला 41 and 43. 41 and 43. Yes, they are twin primes. मैं इसको भी लिख लेता हूँ 41 and 43. क्यों ये? क्योंकि इनमें 2 का डिफरेंस है दोनों में, राइट? इसको हम एनसर्कल कर लेते हैं. Then 43, 47. No, 4 का डिफरेंस. 47, 53. No, 6 का डिफरेंस है. 53, 59. No, 6 का डिफरेंस अगेन. 59 and 61, दे आर ट्विन प्राइम्स. क्यों? क्योंकि इसमें 2 का डिफरेंस है. आई राइट 59, 61. देन 61, 67. नो. 67, 71. नो. 71, 73 इज अनदर ट्विन प्राइम पेयर. इसमें भी 2 का डिफरेंस है. 71, 73. Then 73, 79, no. 79, 83, no. 83, 89, no. 97 and 89 and 97, no. This was the last prime number between 1 to 100. So I have written all the prime numbers between 1 to 100. How many? 3 twin prime numbers. Twin prime numbers are a pair 3, 5, 5, 7, 11, 13, 17, 19. 29, 31, 41, 43, 59, 61 and 71, 73. How many pairs are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So I written, we have seen that there are 8 twin prime numbers between 1 to 100, right? So next is prime triplets. What are prime triplets? These are 3 consecutive prime numbers having difference of 2. Consecutive means very next आएगा, एक लाइन में आएंगे. लाइक मैं आपको 1 to 100 प्राइम नंबर्स अगेन आई शो यू द प्राइम नंबर्स. देखिए लाइक दीज आर कनेक्ट. 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा? 3. 3 के बाद कौन सा था? 5.
then 7. These are consecutive. 5 and 11 are not consecutive because 5 के बाद 7 आता है, 11 नहीं आता, राइट. कंसेक्टिव का मतलब समझिए ना. तो हमें अब प्राइम ट्रिपलेट में क्या करना है, वी हैव टू सर्च दोज 3 नंबर्स, 3 कंसेक्टिव नंबर्स जिनका 2 का डिफरेंस हो, 2 का डिफरेंस हो. लाइक 2, 3, 5 हो सकता है, नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 का. 3, 5, 7 हो सकता है ये वाला, यस हो सकता है 3, 5, 7. क्यों? 3 एंड 5 में डिफरेंस कितना है, 2 का, एंड 5 एंड 7 में कितना है, 2 का. बाकी अगर आप चेक करेंगे 7, 11, 13 नो, 13, 17, 19 नो. इट इज 3, 5, 7 इज द ओनली प्राइम ट्रिपलेट पेयर बिटवीन 1 to 100, राइट. अगर आपसे कोई पूछे प्राइम ट्रिपलेट के बारे में तो 3, 5, 7 इज द प्राइम ट्रिपलेट पेयर, राइट. नाउ लास्ट इज को-प्राइम्स. को-प्राइम क्या होते हैं? दीज आर द नंबर्स, प्लीज माइंड इट, आई एम नॉट कॉलिंग प्राइम नंबर्स, मैं प्राइम नंबर्स नहीं कह रहा. दीज आर नेचुरल नंबर्स विच हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1. इसका मतलब क्या हुआ? वो नंबर्स, वो 2 नंबर्स जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, सिर्फ वन हो, लाइक कोई भी नंबर्स. लेट मी टेक वन एग्जांपल. 13 एंड 17 का पेयर लेते हैं. 13 और 17 में कोई कॉमन है, बोथ आर प्राइम नंबर्स, राइट. तो 13 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 एंड 13. 17 के क्या होते हैं, बिकॉज 2 ही फैक्टर होंगे, बिकॉज दे आर प्राइम, 1 और 17. तो इनमें कॉमन क्या है, ओनली 1 इज कॉमन, सो दे आर को प्राइम पेयर, राइट. देन अगेन मैं एक और नंबर लेता हूँ. जरूरी नहीं दोनों प्राइम हो. क्या होते हैं, क्या होते हैं बताइए, 1 एंड 8, 2 एंड 4, राइट. और 15 के क्या होते हैं, 1 एंड 15. मैंने आपको फैक्टर्स पहले सिखाए हुए हैं, अगर आप वीडियो देख सकते हैं, प्रीवियस वीडियो. 3, 5 are 15, राइट. नाउ यू चेक, इसमें कॉमन है 1, 2, 4, 8. इसमें 1, 3, 5, 15. तो ओनली द कॉमन नंबर इज 1 इसमें. सो दिस इज अ को प्राइम. प्लीज नोट इट, बोथ 8 and 15 are composite numbers, they are not prime numbers. 13 and 17 were prime numbers, they are co-prime. This is also so. co-primes में जरूरी नहीं कि दोनों नंबर्स हमारे प्राइम नंबर हो, इधर वन कैन बी प्राइम और दूसरा कंपोजिट हो सकता है, या दोनों प्राइम नंबर्स हो सकते हैं, राइट. देन 2, 3 इज अनदर को प्राइम नंबर. प्राइम नंबर है, 3 भी हमारा प्राइम नंबर है, राइट. 4 and 5, 4 इज योर कंपोजिट नंबर, 5 इज योर प्राइम नंबर, ये भी दोनों को प्राइम है, राइट. देन अनदर एग्जाम्पल 15, 17. अब कोई भी एग्जाम्पल्स, बहुत सारी एग्जाम्पल्स बनती है इसमें, आप चेक कर सकते हैं. 15, 17 दे आर ऑल्सो को प्राइम्स. द थिंग्स टू बी नोटेड इन केस ऑफ को प्राइम्स, एक वर्ड आता है HCF. HCF इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन केस ऑफ को प्राइम्स इज ऑलवेज 1. वो नंबर्स जिनका HCF को हम GCD भी कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर. HCF 1 हो, वो सारे को प्राइम होते हैं जिनका HCF 1 हो. दूसरी बात आपने नोट करनी है, सेकेंड पॉइंट टू बी नोटेड इन केस ऑफ को प्राइम्स इज ऑल प्राइम नंबर्स. ऑल प्राइम नंबर्स आर को प्राइम्स. कोई भी प्राइम नंबर आप ले लीजिए, कोई 5, 7 ले लो. हमारे प्राइम नंबर्स, जितने भी प्राइम नंबर्स थे, लाइक ये प्राइम नंबर 53, 15, 9 ले लो, इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1. 59, 61 ले लो, ये भी को प्राइम बनते हैं. 61, 67 ये भी, ऑल प्राइम नंबर्स आर बेसिकली को प्राइम्स, राइट. और एक और कई बार पूछ लेते हैं, व्हाट इज द एलसीएम, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ अ को प्राइम नंबर्स. अगर 5 और 7 का हम देखें, 5 और 7 इज योर
को प्राइम पेयर, राइट. इसका HCF कितना होएगा? HCF इज 1. देन व्हाट इज द LCM? LCM इज ऑलवेज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स. प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 35. इसका LCM क्या होएगा? अगर को प्राइम्स की बात करें तो उसका LCM, उनका प्रोडक्ट को LCM बोलते हैं, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल. लाइक मैं आई गिव यू 8 और 15 की हमने बात करी. 8 और 15 का आर को प्राइम्स, राइट, को प्राइम्स. तो इनका HCF कितना होएगा? 1. एंड व्हाट इज द LCM? LCM इज द नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, दैट इज 8 मल्टीप्लाई बाय 15 इज 120, right? Now I think you have understood the concept of co-primes. Also I'll give you one homework for you. Yes, you try these questions at your place. First question is, if 3 and 5 are co-prime numbers, then what is the HCF and LCM? इसका कैलकुलेट करो HCF और LCM, राइट. क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स बिटवीन 15 and 23, 9 and 6, right? 15 and 23 को प्राइम है. Yes, they are को प्राइम. 9 और 6 को प्राइम है. आप चेक कीजिए. No, they are not को प्राइम, right? So this is a homework for you today. Now we will summarize the things what we have learned today, right? हमने पहले क्या किया था? प्राइम नंबर्स. प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिनके दो ही फैक्टर होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. देन प्लीज नोट इट, आई टोल्ड यू 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर. नंबर 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर. तो ये क्या है? कॉम्पोजिट नंबर है? नो, 1 इज नीदर प्राइम नंबर नॉर कॉम्पोजिट. क्यों नहीं है? क्योंकि इसका ओनली सिंगल नंबर है, ये सिंगल फैक्टर है, 1 ही फैक्टर है. कॉम्पोजिट में कंडीशन इज दैट इफ इट शुड हैव मोर देन 2 फैक्टर्स. सो 1 इज नॉट अ कॉम्पोजिट नंबर एज वेल एज 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर. सेकेंड, एक 2 इज अ प्राइम नंबर, राइट. 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर. इवन प्राइम नंबर, सिर्फ 2 एक ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर भी है और इवन भी है. बाकी ऑल अदर प्राइम नंबर्स आर ऑड. बाकी सारे आप चेक करो, प्राइम नंबर सारे ऑड होते हैं. ओनली 2 इज द नंबर विच इज इवन. थर्ड पॉइंट हमने देखा था, देयर आर 25 प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100. मैंने आपको वो सारे दिखाए हैं, राइट, आप चेक कर सकते हो. देन फोर्थ हमने पढ़ा है ट्विन प्राइम नंबर्स. ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं? जिनके डिफरेंस 2 का होता है, राइट. जिनमें वो प्राइम नंबर्स, वो कंसेक्टिव प्राइम नंबर्स which are having difference of 2, like 3, 5, 5, 7, 11, 13, right? Then prime triplet हमने पढ़े. There are 3 consecutive prime numbers which are having difference of 2. 3, 5, 7 is the only prime triplet, right? Then co-primes वो numbers थे वो जो कि which are having no common factor except 1. सिर्फ उनका एक ही फैक्टर था, कॉमन फैक्टर था, दैट वाज 1. HCF मतलब उनका 1 था. को प्राइम्स में आपने याद रखना है, सारे प्राइम नंबर्स का पेयर्स, अगर कोई भी 2 प्राइम नंबर्स पकड़ो वो को प्राइम होंगे. और को प्राइम्स में ये भी है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट बोथ शुड बी प्राइम, राइट. 8 और 15 की अगर बात करें तो बोथ आर कॉम्पोजिट नंबर्स, स्टिल दे आर
को प्राइम नंबर्स, राइट। वैसे तो कंसेक्टिव नेचुरल नंबर्स जितने भी होते हैं दे आर को प्राइम्स। अगर कंसेक्टिव नेचुरल नंबर मतलब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे। अगर ये दोनों को देखो, दीज आर को प्राइम्स, 2 and 3 इज को प्राइम, 3 and 4 is co-prime, 4 and 5 is co-prime, right? Because they are having only common factor, that is 1. 1 is the common factor in between 4 and 5, right? और इनका LCM क्या होता है, co-primes में LCM क्या होता है, उनका प्रोडक्ट होता है। अगर 4 और 5 की बात करें और इनका LCM क्या हो गया, 4 multiplied by 5 is 20, right? And HCF क्या होगा, it is 1. So that was all for today. Now if you still have any doubt or query, you can put it in the comment box. I will surely reply to it. Further, if you have understood the concepts, please press the like button and share this video with your friends. Thank you very much. God bless you. Have a wonderful day. Bye bye.